सुप्रभात। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, कि ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के भावार्थ को यथार्थ करते हुए इस कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में भी हमने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए हैं और आज हम सब हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। On this delightfully pleasant August morning, I welcome you all. It is indeed my proud privilege to extend a very hearty welcome to our honorable guest, Mr. Shashi Bhushan Sharma, DIG, BTC, ITBP Bhanu, and also the Chairman, VMC, KV ITBP Bhanu. I, Meena Nagyal, on behalf of our worthy principal, Mr. Sunil Kumar, entire staff and student, welcome you, sir. Year 1936, Berlin Olympics in Germany. India had secured position at the finals in hockey against Germany, and during an introductory session before the finals of hockey, the captain of Indian hockey team tacitly refused to salute Adolf Hitler, the dictator, but thereafter won his admiration and adulation by beating Germany 8-1. This man, this legendary sports icon, was Major Dhyan Chand Singh. Born in 1905 at Allahabad, Uttar Pradesh. 29th August is thus celebrated in India as National Sports Day to honor and felicitate this greatest sports icon of India, whose prowess brought Indian hockey to the world map. This day is also observed to spread awareness amongst the masses about the significance of games and sports and physical activity in everyday life. Last year, on this occasion, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, launched the Fit India movement, a nationwide campaign that aims to inculcate physical activity and sports in every man's life. This day is also earmarked for honoring the sporting stars of the nation. The Rashtriya Bhavan organizes special award ceremony in honor of the sporting icons of the year, conferring upon them awards, the topmost on list being the Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement. The sole reason of these celebration also lies in championing the spirit of sportsmanship and propagating and nurturing the budding sporting talent in every nook and cranny of India. The Rashtriya Khel Divas thus prioritizes in promoting this talent and flair for sports, whereby India can achieve greater heights in the international sports arena. Kendriya Vidyalaya Sangathan, dear friends, is one of the most premier institutions of India. In KVS,
we not only believe and uphold that sports and games are an integral part of curriculum, not just a co-curricular activities. Sports and games in KVs are played not only at school, cluster or regional level but also at national level. Our students participate in SGFI, the Sports Games Federation of India, which is the topmost in sporting events during the schooling years. Friends, unfortunately, due to corona pandemic, the sporting events had been suspended all over the world. But of course, during the previous session, several students participated at regional and national levels in different sporting events from our school. I feel immensely proud to apprise you that they bagged 13 gold, 7 silver and 9 bronze medals at regional sports events, especially judo and taekwondo. The girls team secured first place in the under 17 judo and an overall second place in the judo championship, whereas the under 19 boys team bagged the third position. 13 of our students participated at the national level in judo, taekwondo and volleyball, and they secured 1 gold, 1 silver and 1 bronze medal. One of our students, Manvendra, got selected on scholarship to participate in SGFI. Another student of last year's class 9, Yogesh, had got gold in the district level boxing championship and was selected to participate in the state level Haryana boxing championship. Friends, sports play a very vital role in our lives as they are capable of conveying basic rules and essential values of peaceful coexistence, such as tolerance, loyalty, team spirit, and fair play. Sports are not just about a simple game being played, but much more. Sports build good habits, confidence, and discipline. They make players into community leaders and teach them how to strive and to seek a goal, handle mistakes, and cherish growth opportunities. So, friends, we can safely say sport is not a part of education, sport is education itself. So, to celebrate this special day, KV ITBP Bhanu has a host of activities at your disposal, including a quiz, poster making, interesting speeches, one of them being by a student Shreya, a talk by my learned colleague Mr. Uma Shankar, and of course motivating messages from our worthy chief guest and principal. So, for further activities now, I hand over to my colleague Miss Rajneesh Kataria, and saluting the spirit of true sportsmanship and paying my humble tribute to this legendary sports icon Major Dhyan Chand, I wrap up here and wish you a very happy and happening National Sports Day. Thank you all. धन्यवाद मीना नागियान मैम। मैं रजनीश कटारिया, केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु की शारीरिक शिक्षक अध्यापिका, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस उपलक्ष्य में माननीय अतिथि मिस्टर शशि भूषण शर्मा, DIG BTC ITBP भानु, मिस्टर सुनील कुमार, प्रिंसिपल KV ITBP भानु, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प।
तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। फिर नहीं मिलेंगे खेलने के मौके, बच्चों को खेलने दें, उन्हें ना रोके। खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें मजबूत, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। ये वो क्षेत्र है जो हमें एक समान दिनचर्या से कुछ अलग परिवर्तन दे सकता है। सभी खेलों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन का एक उपयोगी साधन होने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों का भी एक तरीका है। खेल क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक विकास दूसरों से बहुत अच्छा होता है। यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास के स्तर में विकास और शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। खेलों में रुचि हमें जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में और शरीर और मस्तिष्क को तनाव रहित रखने में मदद करती है। खेल पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्तर में सुधार होता है। स्पोर्ट्स गतिविधियां सभी के लिए, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती हैं। यह स्मृति स्तर, एकाग्रता स्तर और बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार करती हैं। एक छोटा सा बच्चा भी यदि बचपन से ही अपने प्रिय खेल का अभ्यास करे तो वह प्रसिद्ध खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सकता है। खेल एक व्यक्ति के लिए अच्छा भविष्य, कैरियर के रूप में काम आते हैं। यह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने, धन, नाम और कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारे देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन हमारे देश के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है। मेजर ध्यानचंद ने हमारे देश का नाम खेल में अपने उत्तम प्रदर्शन द्वारा बहुत ऊंचा किया है। इसलिए उनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस सभी विद्यालयों, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाओं और खेल एकेडमी में भी मनाया जाता है और हमारी जिंदगी में खेल कूद के महत्व को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही यह दिन मनाने के पीछे एक और उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश के युवाओं में खेल को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर पाएं और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न कर पाएं कि वे अपने खेल के द्वारा, अच्छे प्रदर्शन के द्वारा खुद की तरक्की तो कर ही सकते हैं, साथ ही उनके अच्छे खेल प्रदर्शन से देश का नाम भी वे ऊंचा करेंगे और राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ाएंगे। मेजर ध्यानचंद वह शख्सियत हैं जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश के युवाओं में खेल को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर पाएं और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न कर पाएं कि वे अपने खेल से अच्छा प्रदर्शन करके खुद की तरक्की कर लें और साथ ही उनके अच्छे प्रदर्शन से देश का नाम भी ऊंचा हो और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाएं। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को भारत के इलाहाबाद शहर में हुआ था और इस दिन हमें और हमारे देश को महान हॉकी खिलाड़ी मिला। उनमें अपने खेल हॉकी के प्रति अद्वितीय क्षमताएं थी। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने खेल के द्वारा देश में हॉकी नामक खेल को एक अलग और ख़ास मुकाम दिलाया तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक के साथ खेल के मैदान में जैसे जादू करते थे और खेल जिता देते थे, इसलिए उन्हें हॉकी विजर्ड का टाइटल भी दिया गया था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत सन 1926 में की। उनकी कप्तानी के समय देश को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताने में मदद की।
ये गोल्ड मेडल उन्होंने सन 1928, सन 1932 और सन 1936 में देश को जिताए थे। उनके खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि जर्मन की नागरिकता हासिल कर लें और उन्हें जर्मन सेना में कर्नल बनाने के साथ ही धन दौलत भी दिया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये कहा कि मैं भारतीय हूँ, भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत के लिए ही खेलूंगा और आगे भी खेलता ही रहूंगा। वह समय भारतीय हॉकी प्रदर्शन का और सभी राष्ट्रीय खेलों का एक बहुत ही स्वर्ण युग माना। इस महान खिलाड़ी ने अपने खेल में सन 1948 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय उनकी आयु 42 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने हॉकी से संन्यास धारण किया था, अर्थात वे रिटायर हो गए। मेजर ध्यानचंद चाहे खेल के मैदान में हो अथवा बाहर, वे हमेशा एक अच्छे इंसान रहे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इसके साथ वे ऐसे पहले और अब तक के अकेले ऐसे हॉकी प्लेयर बने जिसे यह अवार्ड प्राप्त हुआ। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति स्वयं देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर इन सभी सम्मानों के साथ देश का सर्वोच्च खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है, जो कि सबसे पहले सन 2002 में दिया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस पर 15 दिग्गज खिलाड़ियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हॉकी में श्री अजीत सिंह के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। एक बार फिर मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेलकूद दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हार भी जाओ तो गम ना करो, फिर से खेलो मगर हौसले कम ना करो। हार या जीत को दिल से ना लगाना, सब कुछ भूल के बस खेलते जाना, बस खेलते जाना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। प्यारे बच्चों, 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, जिन्होंने अपने कौशल और हॉकी स्टिक से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे खिलाड़ी को मैं शशिभूषण शर्मा, डीआईजी बीटीसी, आईटीबीपी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं तथा आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, हर वर्ष 29 अगस्त को आप अपने विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और अनेक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, पर इस वर्ष कोविड-19 पेंडेमिक के कारण सभी गतिविधियां ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। आपकी कक्षाएं, आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है और आप घर से बाहर निकलकर खेल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना वही कर सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो, और स्वस्थ रहने के लिए खेल, योग व प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के सभी बच्चे, युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, इसके लिए शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी प्रावधान है। बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों में SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की मुहिम भी प्रारंभ की गई है। खेलने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, अपितु
मन भी स्वस्थ रहता है। कहा भी गया है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इतना ही नहीं, खेलने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, विचारों में सकारात्मकता आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, नेतृत्व का गुण, अनुशासन, समय की पाबंदी, न जाने खेल के कितने फायदे हैं जो गिनाए नहीं जा सकते। खेल के फायदे ही फायदे हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मेरा आप बच्चों के लिए आज के दिन यही संदेश है कि आप खेल एवं योग को अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। तभी हमारा समाज और देश स्वस्थ बन पाएगा तथा गत वर्ष शुरू हुई फिट इंडिया मूवमेंट की सफलता में हम सभी अपना योगदान कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, खूब खेलो। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से और शिक्षक साथियों की ओर से खेल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता ही है कि आज हम किस जगह पे हैं। कोरोना महामारी के चलते हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस विद्यालय में या प्रैक्टिकल रूप में नहीं मना पा रहे हैं। फिर भी हमने ये एक प्रयास किया है कि इस खेल दिवस के दिन आप तक पहुंचा जाए। खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। वो खेल का जो रोल है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है, चलने के बाद दौड़ना सीखता है, तो दौड़ना एक खेल है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे बच्चों की खेलों में रुचि ज़्यादा होती है। यदि हम उसको पढ़ाई की तुलना करें तो हमने देखा है, हम देखते भी हैं कि बच्चे गेम्स पीरियड मिलता है तो सारे जने तैयार, टीचर भी तैयार, बच्चे भी तैयार। और यदि उसी गेम्स पीरियड में कोई टीचर आता है कि मैं पढ़ा देता हूँ, तो बच्चों के चेहरे मुरझा जाते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, एकेडमिक में कम, पढ़ाई में कम। मगर देखिए, सीधी बात है, यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप में से कोई कुछ भी बन सकता है। आप सोचिए यदि खेल में हमारा कितना बड़ा योगदान है। खेल हमारे लिए, देखिए, खेल में भारत रत्न, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आप सोच सकते हैं भारत रत्न किसे दिया जाता है। भारत रत्न उनको दिया जाता है जो हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस, मतलब जिनको हमने बहुत सिलेक्टिव, पूरे किसी न किसी फील्ड में बहुत कम लोगों को मिला है अब तक भारत रत्न, पूरे यदि हम आज़ादी के बाद से देखें तो। अब आप सोच सकते हैं उसमें हमारे सचिन तेंदुलकर हैं और मेजर ध्यानचंद जी का तो कहना ही क्या। उन्हीं के, देखिए, उनके नाम के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आप इसी से सोच सकते हैं कि खेल की महत्वता कितनी होती है रोल में। यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो थोड़ी सी वो है कि भाई आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है जितना खेल कूद ज़रूरी है। बस ज़रूरत क्या है, उन दोनों में सामंजस्य बनाने की। खेल कूद ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने SGFI तक खेला है और उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया है। तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है कि वो उस फील्ड में जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए, अब उनको उस SGFI में अच्छा प्रदर्शन करने से उनको आगे एडमिशन में आसानी मिल जाएगी।
आगे उनका कैरियर बन जाएगा। तो खेल कूद में यदि आपने कैरियर बनाना है तो आपको उसमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। तो खेल कूद एक ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर मैं बता चुका हूँ, ध्यानचंद जी हमारे खेल हॉकी के जादूगर जिनको हम बोलते हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ये लॉन टेनिस के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लड़कियों की बात करें तो कितने सारे नाम हैं, साक्षी मलिक, इतने सारे नाम हैं। अब तो लड़कियां भी खेलों में ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, यदि हम लड़कों से उसकी तुलना करें तो ये बहुत ही अच्छी संकेत है हमारे लिए, हमारे खेल कूद के लिए। हमारे देश में खेल कूदों को बढ़ावा तो बहुत दिया जा रहा है, मगर अभी हमारे पास एक सोचने की विषय ये है, बात ये है कि हम ओलंपिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या जितनी है उसके यदि हम उसको उससे कंपेयर करें चाइना से या दूसरी अन्य देशों से, चाइना, अमेरिका, वो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ओलंपिक्स में पदक लाते हैं। बस हमारे देश में एक यही ओलंपिक्स ही ऐसा फील्ड रह गया है जिसमें हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो उसमें हमें अच्छा करने के लिए खेल कूद की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो ये सब हमारा देश तभी कर पाएगा जब आप उसमें अधिक से अधिक रुचि लाएंगे, अधिक से अधिक उसमें प्रेशर डालेंगे, सरकार पे जोर डालेंगे कि हमें उन सब के आगे बढ़ने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये खेल कूद जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है कि आप ये सोच लीजिए। देखिए मैंने आपको सबसे पहले आप ये जो हम मेजर ध्यानचंद जी जिसका हम जन्मदिन आज मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ही देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धता क्या होगी किसी के लिए? आप भी सोचिए कि हम कैसे, यदि आपको लगता है कि हमारे अंदर ये खेल की प्रतिभा है और मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो आप आइए, हम स्कूल प्रशासन आपके साथ है। हमने बहुत बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और अब भी कर रहे हैं, मगर अभी जो परिस्थिति है, जो कोरोना काल की वजह से बनी है, उस वजह से हमारी खेल कूद की प्रतियोगिताओं पे और जितने भी खेल कूद से संबंधित जितने भी हमारे खेल हैं वो रुक से गए हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी खेल कूद की मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बंद कर दें। घर पे भी हो सकती हैं बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे घर पे आप बहुत कुछ, घर पे आप सवेरे सवेरे अनुलोम विलोम एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे मैट डाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं घर में। अब आप कहेंगे सर घर में कैसे रनिंग करेंगे, घर में तो थोड़ा सा स्पेस होता है, खड़े खड़े ही करो, यूं बस आप देखिए रनिंग करोगे सांस चढ़ेंगे। मैं करता हूँ अभी मैंने कुछ दिन से बंद कर रखी है, अदरवाइज मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आप इसको करके देखिए, बहुत आनंद मिलेगा और जो एनर्जी आपकी कैलोरी जितनी आपकी बर्न होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने देखिए सीधी सी बात है, यदि आपका मन और तन स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है, आपके पास सब कुछ है। निरोगी काया सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। आप बीमार हो हैं, आप फिर क्या न खा सकते हो न कुछ कर सकते हो। और तो खेलने के लिए खेल एक ऐसी माध्यम है जिससे हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप ये मैं तो कहूँगा कि क्या कहें इसको, एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट लगाए हैं। देखिए आप सोचिए खुद, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, 90-95 आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन का ज़माना है, 95-96 उन बच्चों के चश्मे लगे होते हैं, 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। बट उनकी फिजिकल हेल्थ जो होगी वो आप जो दूसरा बच्चा होगा जो
खेलता कूदता होगा, नॉर्मल लाइफ वो कर रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा खराब होगी। उनके चश्मे लगे होंगे, उनसे कहोगे यहाँ से वहाँ तक दौड़ा जाए, उनसे दौड़ा नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और ये बाद में यदि आप अभी फिजिकली हेल्दी नहीं हो इस एज में, एडोलेसेंस की एज में, खासकर जो बच्चों की आपकी एज है, तो आप आगे जाके भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि खेल कूद ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू, आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर फिर वही बात, इन दोनों में, पढ़ाई में और खेल कूद में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आप इस खेल कूद की महत्वता देखिए, समझते हुए इनको आगे बढ़ाने की, चाहे आप अभी घर पे बैठे हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो, मानता हूँ आपको बहुत बहुत पेरेंट्स क्वारंटाइन होके बैठे हुए हैं। वो कहते सर हम कैसे करें एक्सरसाइज, हम कैसे करें। आपके पास, आप कहोगे हमारे पास एक्सरसाइज की वो नहीं है, आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। एक्सरसाइज तो कोई वीडियो, मोबाइल, यूट्यूब, आजकल सब आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप योगा भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसे नहीं बोला गया। हम इस विषम परिस्थितियों से निकल कर ही इस बीमारी से, कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, इससे भी हम जीत सकते हैं यदि हम फिजिकली हेल्थ रहें। देखिए खेल कूद का कितना बड़ा महत्व है। आप खुद सोचिए, जो खेलता कूदता होगा बच्चा और उसकी फिजिकली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोरोना क्या करेगा उसका? कोरोना भी उसके आगे सरेंडर कर देगा। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा उसकी। ये खेल कूद एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। एक लीडरशिप भी मिलती, लीडरशिप, आप लीडर बन सकते हो। लीडर मीन्स लीडर क्वालिटी आपके अंदर आती है। जैसे आप ये देखिए, एक टीम गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हर उस टीम का एक कैप्टन भी होता है। कैप्टन होगा तो उसको पता करना पड़ेगा कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। आजकल तो आप देखिए 2020 IPL अब इस विषम परिस्थितियों में होने जा रही है, तो उसमें भी एक कैप्टन होता है, वो लीडर। और स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीज़ें आप खेल कूद की भावना से सीख सकते हैं, खेल कूद से सीखा जा सकता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत खेलता था, अब भी जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ, और मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। और किसको नहीं पसंद है बताइए, सबको पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खेल कूद से बहुत कुछ सीखें और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, चाहे किसी भी स्थिति हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कोरोना काल में भी आप घर में भी खेल कूद सकते हैं। आप घर पे एक जगह खड़े होकर, या छत है तो छत पे थोड़ा सा रनिंग कर लें, थोड़ा सा एक जगह रनिंग करते हो वो भी रनिंग ही है। खड़े खड़े रनिंग कीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में सांस चलने लग जाएंगी। कोशिश करके देखिए। स्कीपिंग कर लीजिए, घर में स्कीपिंग कर सकते हो आप आराम से। स्कीपिंग होगा, स्कीपिंग रोप चाहिए बस उसके लिए आपको। तो माध्यम कोई भी हो, मगर आपको ये जंग, हमारे जो कोरोना की अभी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज लेके खड़ी है, इससे हमें जीतना है। और ये खेल कूद ही हमें जिता सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खेल कूद हमें इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही सहायक होंगे। क्यों? आप ये खुद सोच लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। खेल कूद से आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी लोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम इस बीमारी को भी, इस महामारी को भी अपने विल पावर से और अपनी खेल कूद की क्षमता से इसको हटा सकते हैं। तो इन्हीं संदेश के साथ मैं आपको खेल दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो माननीय चेयरमैन सर VMC के हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे ऑनलाइन वीडियो
ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो हमारा स्पोर्ट्स डे आज मनाया जा रहा है उसमें अपना प्रतिभागी अपना समय देकर हमें अनुभूत किया। और मैं खासकर और कुछ जो शिक्षक इस ऑनलाइन वीडियो नेशनल स्पोर्ट्स डे से संबंधित जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने भी किया है, उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम मना रहे हैं ऑनलाइन, इसको सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप इसे जीवन में अपनाएंगे और अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 की वजह से हम अपने विद्यालय ना जाकर अपने अपने घरों से ही योग दिवस मनाएंगे। मैं शुभांगी राठौड़, केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु कक्षा 7वीं की छात्रा, अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं संगीत शिक्षिका के साथ योग दिवस को गीत और आसन के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। योग के संग रह कर रहा हम सबको आगे बढ़ना है। योग के संग रह कर रहा हम सबको आगे बढ़ना है। नर तन को पूर्ण त्याग योग से ही स्वस्थ रखना है। नर तन को पूर्ण त्याग योग से ही स्वस्थ रखना है। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। जो भी शरण योग की आया उसकी निर्मल हुई काया। जिसने भी ये योग अपनाया तन मन को निरोगी बनाया। ऋषियों ने इसे अपनाया, इससे कण कण महकाया। ऋषियों ने इसे अपनाया, इससे कण कण महकाया। वो योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। तुम रोज योग अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। तन मन की चिंता मिटाओ, तुम शरण योग की आओ। योग से ही रोग का तुम आज से दमन करो। ओ योग से ही रोग का तुम आज से दमन करो। ओ योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। आसन और प्राणायाम तुम करो सुबह और शाम। हो जाए निरोगी काया, नहीं लगता है कोई दाम। तुम योग की देखो माया, जन जन को निरोगी बनाया। तुम योग की देखो माया, जन जन को निरोगी बनाया। ओ योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। नर तन को पूर्ण त्याग इस योग से ही स्वस्थ रखना है। नर तन को पूर्ण त्याग योग से ही स्वस्थ रखना है। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है।
Good morning, all of you. My name is Dinesh Singh, Bhim Awardee from Government of Haryana. मैं आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पे हार्दिक बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ. I would like to congratulate all of you on behalf of our all sports fraternity. आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं. चूँकि राष्ट्रीय खेल दिवस हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाते हैं और मैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जितना जानता हूँ वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि मेजर ध्यानचंद एक ऐसे स्पोर्ट्समैन थे अपने उस एरा में जब वो खेला करते थे. स्पोर्ट्स हॉकी के प्लेयर थे वो, और उनके जैसा हॉकी का प्लेयर मैंने जहाँ तक देखा है वैसा अभी तक हुआ नहीं है पूरे वर्ल्ड में. 3 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में 1928, 1932, 1936. 3 ओलंपिक्स में कंटिन्यूसली उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हमारे इंडिया कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए. और जैसा कि आपको मालूम है हम उस पीरियड में हमें आज़ादी नहीं थी, हमें ब्रिटिश रूल करते थे हमारी कंट्री को. तो वो इंडियन आर्मी में या ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो एक इतने महान प्लेयर हैं कि मैं उनके बारे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि वो कितने महान और कितने एडवर्स सिचुएशन में खेलने वाले प्लेयर. ऐसे सिचुएशन में जहाँ उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी फिर भी उन्होंने खेला और वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं. आज भी उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से पहचाना जाता है. और मैं हॉकी का प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ. तो मैंने भी काफ़ी सारे काफ़ी सारे लेवल पे आई मीन टू से आई प्ले अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 एंड देन इन द सीनियर टीम ऑल्सो. मेरी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं. मैं जब वॉलीबॉल खेलना शुरू करा तो काफ़ी छोटे जगह से, वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना के बराबर थे. तो मेरे खुद के इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि मुझे खेलना था, मैंने गेम खेलना या गेम देखना शुरू किया था ऑन माई वेरी अर्ली स्कूल डेज. तो मैं वॉलीबॉल खेलता था. मेरे से पहले मेरे 2 बड़े भाई भी हैं जो अभी हैं, वो भी खेलते थे. उनको देख करके मुझे मोटिवेशन मिला. उनके साथ साथ मैं स्टेडियम जाना शुरू किया. उन्होंने ही मुझे बेसिक चीज़ जो है स्पोर्ट्स की उन्होंने मुझे सिखाई. उसके बाद मैं खेलते खेलते नेशनल गेम में गया. नेशनल गेम से फिर मैं अंडर 17 के नेशनल टीम में गया कोचिंग कैंप में. फिर वहाँ से मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ. फिर मैं फर्स्ट 2001 में ईरान खेलने चला गया एशियन चैम्पियनशिप के लिए, दैट इज़ कॉल्ड यूथ एशियन चैम्पियनशिप. उसके बाद 2003 में हमने उसमें गोल्ड मेडल जीता. फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे सिल्वर मेडल मिला हमारी पूरी टीम को, इंडियन टीम को, जो कि एक मैडम हिस्ट्री है हमारे वॉलीबॉल में. उससे बड़ी अचीवमेंट आज तक हमारे वॉलीबॉल की हिस्ट्री में नहीं हुई है कि हम वर्ल्ड कप में जा कर के सिल्वर मेडल तक जीते और हम ब्राज़ील से फाइनल में लूज़ कर गए. और वो ब्राज़ील टीम जिसे हमने लीग में हमारी पूल में थी वो, और हमने उसे हराया था. तो मैं आपको ये सब बच्चों ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फील किया जब मैं स्पोर्ट्स में नहीं था, एक मेरा वो पीरियड वो जो मैं स्पोर्ट्स से कंटिन्यू स्पोर्ट्स में आ चुका था. एट द टाइम ऑफ 9th मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था. हालांकि मैं थोड़ा लेट था क्योंकि सिचुएशन ऐसे थे घर में कि मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया. हालांकि उससे पहले स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक सो. तो उस सिचुएशन में जब मैं खेलना शुरू कर रहा था तो उससे पहले मैं काफ़ी बीमार रहता था. काफ़ी बीमार इन द सेंस कि आपको हमेशा अनईजी फील होना या कोल्ड होते रहना, फीवर होते रहना, हर कुछ दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना हो चेकअप के लिए. तो ये सब काफ़ी होते रहते थे जब मैं स्पोर्ट्स नहीं करता था. तब जब सडनली मैंने खेलना शुरू किया उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद नहीं है कि मुझे लास्ट टाइम फीवर कब हुआ था.
जो मैं बचपन में इतना बीमार होता था, सर्दी या कोल्ड होना, फीवर होना, उसके बाद मैं मतलब मुझे याद नहीं कि मुझे फीवर कब हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में आने के बाद मेरे अंदर तो ये बदलाव आई कि मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स देश के लिए जीते। मैं खुद की फिटनेस के बारे में आपको बता सकता हूँ। और आज की सिचुएशन में आपको ये बात बताऊँ तो स्पोर्ट्स से जो कोरोना वायरस का आज का सिचुएशन चल रहा है, इस कोरोना वायरस से जीतने के लिए हमें अगर कुछ चीज़ करनी है, सबसे पहले तो वो है स्पोर्ट्स। हम जितना अच्छा खेलेंगे, जितना अच्छा फिट रहेंगे, हम उतनी ही हमारी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम उससे लड़ पाएंगे। आई मीन टू से कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो सभी को हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो बीमार हो, अंदर से हेल्दी ना हो। अगर हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कोई भी गेम खेलें, बास्केटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, एनी गेम, वेट लिफ्टिंग करें, एथलेटिक्स करें, कोई भी गेम करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और हम अपनी फिटनेस को जब तक ऊपर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी ने कहा है ए ब्यूटीफुल माइंड लिव्स इन ए ब्यूटीफुल बॉडी, फिट बॉडी। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी माइंड बहुत अच्छी है, अगर आप तभी आप अच्छे शरीर में ही होता है अच्छी बॉडी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी आज से ही शुरू करो। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। आज से एक मन में एक अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए एक ऐसी मन में सोच हो कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल जीतूं, ओलंपिक में जाऊं, एशियन गेम्स में जाऊं। बहुत सारे और भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें मैं जाऊं, अपने देश का नाम ऊंचा करूं। इससे अच्छी और तो कोई बात नहीं हो सकती है। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पोर्ट्स में आप कहीं भी जाओगे, स्पोर्ट्स की एक और भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है। वो एक अच्छा इंसान, एक डिसिप्लिन इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कहीं भी कोई भी उसे देख करके कह सकता है कि ये ज़रूर कोई खिलाड़ी है। और आज के टाइम में हमें मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्पोर्ट्स के लिए कितना सीरियस है। मैं पीछे भी इसके मिशन से जुड़ा था। स्वस्थ भारत और स्वस्थ बच्चे के नाम से वो मिशन चल रहा था, योजना थी। मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। वो भी एक बहुत अच्छी योजना है, केंद्रीय विद्यालय ने उसको परस्यू किया। दैट इज़ ए गुड थिंग। एंड इसी के साथ सभी को थैंक यू, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन हैप्पी 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 नेशनल स्पोर्ट्स डे। थैंक यू। हेलो, राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको शुभकामनाएं। आप बता सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? यस, आई एम इन लॉकडाउन, बट आई हैव नॉट स्टॉप्ड फिटनेस रूटीन। आज बात करेंगे फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जीवन में एक स्पोर्ट्स जरूर चुनें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तन, मन और धन, तीनों चीज होंगी अगर आपके पास एक स्पोर्ट है, एक गेम, एक हॉबी, जिसको आप जब से आपने अडॉप्ट किया है और आखिर तक उसमें कमिटेड हैं, उसको करते हैं। ये रूटीन में होना चाहिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है।
कि लॉकडाउन है तो बंद हो गया, लॉकडाउन खुल गया तो फिटनेस रिज्यूम चाहिए। फिटनेस तो जन्म से लेके अंत तक का एक सफर है, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। 5S, सर्व दी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए सर्वाइव लॉन्गर, आपको ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना पड़ेगा। ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए स्टे स्ट्रांग। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप ज़्यादा सर्वाइव करते हो, ज़्यादा सर्वाइव करते हो तो आप ज़्यादा सर्व करते हो। और स्ट्रांग रहने के लिए स्टे फिट। जो बंदा फिट है वही तो स्ट्रांग होगा। जो बंदा फिट है वही स्ट्रांग हो सकता है। और स्टे फिट के लिए, फिट रहने के लिए स्टे हेल्दी। हो गए 5S। और इन सब का एक निचोड़, एक गेम, एक स्पोर्ट, कोई भी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन एक तो कम से कम जरूर हो, वही आपको फिट कर देगा। 5S। और इन सब का कंक्लूजन एक के अंदर। स्वामी विवेकानंद खुद कहा करते थे, मैं चाहता हूं कि मेरा यूथ बाहर जाकर फुटबॉल खेले। जब आप एक गेम खेलते हो, एक स्पोर्ट चुनते हो और उसको खेलते हो, आपकी MBA तो अपने आप हो जाती है, मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स अपने आप आ जाती हैं, गोल सेटिंग, टारगेट, कमिटमेंट, रूटीन, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आप एक स्पोर्ट चुन लीजिए। लॉकडाउन में है, इंडोर चुन लीजिए। लॉकडाउन खुल गया है, आउटडोर भी चुन लीजिए। एक तो कम से कम जरूर चुनिए, एक स्पोर्ट, एक गेम। और बच्चों, जो आप ये बाहर ग्रुप बना के जो खेलते हो ना, उसको गेम स्पोर्ट्स नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं टाइम वेस्टेज। तो बेहतर होगा उसी ग्रुप में आप कोई गेम चुन लीजिए, उसी ग्रुप के साथ खेलिए। बच्चे वही रहेंगे, लेकिन उसको स्ट्रक्चर कर दीजिए। और गेम वो जिसको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई तो रिकॉग्निशन हो, समझिए। ऐसा गेम मत चुनना जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसमें ऊपर जाने के रास्ते नहीं है। आपने कभी ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया है जिसमें कक्षा 1 में ही रहे, कक्षा 2 हो ही ना, और कक्षा 3 भी ना हो, और आप सारी जिंदगी कक्षा 1 में ही जाते रहें? ये जो बाहर गली मोहल्ले में खेलते हो ना, ये वही स्कूल है जहां हमेशा बच्चा कक्षा 1 में रहता है। हमने वो गेम चुनना है, अपने दोस्तों, वही दोस्त रखिए। मैं ये नहीं कहता दोस्त बदल दीजिए, दोस्त वही रखिए, लेकिन उनको मोल्ड कीजिए, उनके साथ मोल्ड हो। और कोई गेम चुनिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, और भी कुछ हो सकते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो सकता है, टीम गेम हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक गेम और एक स्पोर्ट चुन लिया तो ये जान लीजिए कि वेलनेस और फिटनेस अपने आप आ जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रूटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार एक गेम चुन लीजिए, उसको खेलना शुरू कर दीजिए, सारे S ठीक हो जाएंगे, 5S अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप हेल्दी रहोगे। जब आप खेल के आओगे तो आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आपके सामने जो भी कुछ होगा आप सब खा जाओगे, और सब कुछ आपके शरीर को लगेगा, वो आपको एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप लॉकडाउन में हो या गेम नहीं चुनते हो, लेजी हो, बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी खा लेना वो जहर है आपके लिए। और एक्सरसाइज करके आए हो, कुछ भी खा लेना वही अमृत है। स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी का मतलब है आपको अपनी डाइट, इलनेस फ्री, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, आपका मन शांत है, ये हेल्दी की निशानी है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।
ऊपर की कैटेगरी है। जब आप हेल्दी हो तो आप फिटनेस की तरफ ध्यान दोगे। ओ चेस्ट, बाइसेप्स, ये फिटनेस है, ठीक है ना। देन कम्स स्टे स्ट्रांग, और जब आपका सारा सिस्टम सही हो गया, नाउ यू आर स्ट्रांग एंड कैपेबल एनफ टू टेक अप एनी टास्क। कोई डिसास्टर हो, कोई चैलेंज हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी स्ट्रगल हो, आप उसको पार कर जाओगे अगर आप स्ट्रांग हो। आप तो खुद पार कर जाओगे ही, लेकिन आप दूसरों की भी तो मदद करोगे। आप स्ट्रांग होगे, आप दूसरों को कंधा दोगे, उनको हेल्प करोगे, सर्वाइव लॉन्गर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। आया कुछ समझ में? तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स एक स्पोर्ट ऐसे तो मैंने आपको जस्ट वन थिंग एक लेक्चर में बताया था कि आपका एक टारगेट भी होना चाहिए, एक स्पोर्ट भी होना चाहिए, एक हॉबी भी होनी चाहिए। अगर आपकी हॉबी ही आपका स्पोर्ट है तो कितनी अच्छी बात है। और अगर आपकी हॉबी ही आपका स्पोर्ट है और आपकी हॉबी ही आपका कैरियर है, नथिंग लाइक दैट। जय हिंद, जय भारत। स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, बाय। Good morning everyone. Today Aisha Bist of class 12 is going to share some tips on COVID-19 fitness at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the same sort of exercise that we normally do. It's even harder for people who don't usually exercise much. But at a time like this, it's very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase susceptibility to COVID-19. So, here are some tips on how to stay fit and active at home. Incorporate strength training when putting away groceries. Instead of putting a milk carton straight into the fridge, use it as a weight and do a few bicep curls or lift it over your head a few times. Take short fitness breaks when sitting. Whether you are working on your computer or watching television, get up and move around for 5 to 10 minutes for every hour you sit. Pace around the room or do 10-20 jumping jacks. Crank up the pace on chorus. Sweeping, vacuuming, dusting, and even making the bed all burn calories. Not only will you get in a little exercise, you will also maintain a clean home. Pace when you are on the phone. If you spend time on the phone, you can use that time to get in a little exercise. Invest in a hands-free headset and pace around the room as you talk. Put on your favorite music and dance. Dancing can be an intense cardiovascular workout that gets your heart rate up and blood pumping. Use slower songs to warm up, then switch to some faster paced dance music. Eat at least 3 well-balanced meals a day. Balanced meals gives you all the nutrients you need to help you stay fit. Choose lean protein, whole grain breads and pastas, and plenty of fruits and vegetables with every meal. Take the stairs whenever possible. As long as you don't have any joint problems, skip elevators and take the stairs to reach higher floors. Drink water instead of soft drinks. Having 8 to 10 glasses of water a day will keep you well hydrated, which is essential for your overall health fitness. Last but not the least, get a good night's rest. Getting at least 7 or 8 hours of sleep each night can help lower your stress levels and improve the functioning of your immune system. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends.
It's also good for our mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline, and improve overall feelings. So get up and give your mind a little break and stay home, stay safe. Thank you. मेरा नाम कामाक्षी राजपूत है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको कुछ आसन और उनके फायदे बताऊंगी। पहला आसन, इसे भुजंग आसन कहते हैं। इसे करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। अब मैं आपको दूसरा आसन बताने जा रही हूँ। दूसरा आसन, इसे कहते हैं ताड़ा आसन। इसे करने से हमारा मोटापा कम होता है। थैंक यू। मैं पढ़ती हूँ और मैं आज आपके सामने कुछ योगासन करने जा रही हूँ। पहला आसन, दूसरा आसन, तीसरा आसन, चौथा आसन, I am रिधिमा वर्मा, क्लास 6। आज मैं पवन मुक्ता के आसन करने जा रही हूँ। वह 5 आसन हैं। पहला आसन, इससे हमारे पेट और पैर में दर्द नहीं होता। दूसरा आसन, आगे नेक्स्ट, थर्ड आसन, फिर दूसरा पैर, चौथा आसन, अब फोर्थ आसन, अब एक रह गया, 5th। ऐसे ये है 5वां आसन। नमस्कार, मेरा नाम गुरसेवक है। मैं कक्षा 6ठी का छात्र आपके सामने कुछ योगा ट्रिप्स प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब वो कर दे। चलो, I study in class 6। ये है ताड़ासन। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है और हमारा शरीर मजबूत होता है, जिससे हम और आसानी से कर सकते हैं। ये है तितली आसन।
में इससे हमारी लातें मजबूत बनती हैं। ये है वृक्षासन। इससे आपकी एड़ियों और जोड़ों में लाभ होगा और आपका मन शांत रहेगा। ये है धनुरासन। ये योगियों के लिए लाभदायक है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है व मजबूत रखता है। ये थे मेरे आज के आसन। Good morning, teachers. My name is Kshitij. I study in class 4th. My school name is Kendriya Vidyalaya ITBP Dhanu. अरे फिसल गया मैं तो। ये फिसल गया। थोड़ा पीछे हो जाना, उधर हो जाना पीछे। Good morning. My name is Akanksha Dhiman. I study in class 2. The name of my school is Kendriya Vidyalaya ITBP Dhanu. I am 7 years old. I am going to do some yogas. First yoga is second yoga is now I am going to recite a poem. Oh tricolor, oh tricolor, you are my pride, making me strong and happy inside. Beauty you have like a new bride. Oh tricolor, you are my pride. You are inspiration, passion you provide, loved violets, respected national-wide. You are splendid and popular worldwide. Oh tricolor, you are my pride. Oh tricolor, you are my pride. Thank you. मेरा नाम इश्का है। मैं आज आपको सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप दिखाना चाहती हूँ। इसका बेनिफिट्स हमको कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। 1 2 3
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. धन्यवाद. My name is Naman Kumar. I study in class 4th. My school name is Kendriya Vidyalaya ITBP Bhanu. तैयार हो गया. Good morning. My name is Khushi. I study in class 4th. My school name is Kendriya Vidyalaya ITBP Bhanu. जो भी है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुछ योगासन. सबसे पहला ताड़ासन. वृक्षासन. हलासन. धनुरासन. सर्वांगासन. उष्ट्रासन. भुजंगासन. शवासन.
धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैं ईशिका क्लास 6 केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु। आज मैं आप सभी को योगासन करके बताऊंगी। मेरा पहला आसन है ओम का उच्चारण। इसमें आपको कमर सीधे और हाथ सीधे रखने हैं और लंबी गहरी सांस खींचनी है। ओम तितली आसन। इस आसन को करते हुए आपकी टांगें मजबूत बनेंगी और आपकी टांगों में कभी दर्द नहीं होगा। वृक्षा आसन। इस आसन को करते हुए आपकी एड़ी और जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ताड़ आसन। इससे आप तेजी से लंबे होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ योगा के आसन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला आसन ताड़ासन। दूसरा आसन प्राणायाम आसन। तीसरा आसन अनुलोम विलोम। चौथा आसन चक्रासन। पांचवा आसन धनुरासन। छठा आसन वज्रासन। धन्यवाद। मैं कक्षा 6 में की ऋषिका आपके सामने योगा के पोज लेने जा रही हूँ। मेरा पहला पोज है इजी पोज। मैं ऐसे बनाऊंगा है। ये मेरा इजी पोज था। अब मैं आपके सामने काउ पोज करने जा रही हूँ। ये था मेरा काउ पोज। इसके बाद मैं आपके सामने चाइल्ड पोज करने जा रही हूँ। ये था चाइल्ड पोज। अब मैं करने जा रही हूँ डॉल्फिन पोज। ये था डॉल्फिन पोज। इसके बाद मैं करने जा रही हूँ ईगल पोज, जिसपे हमें लैंड करना होता है और अपनी टांगों को ऐसे करके ऐसे करना होता है। ये था मेरा आखिरी पोज। धन्यवाद। Sports serve societies by providing vivid examples of excellence, said George Frederick Will, one of the most famous American journalists. A very pleasant good morning to one and all present here. I am Surya Parmar, a student of class 8th KVITBP Bhanu. And it is my honor to be a part of this wonderful online celebration of National Sports Day of India. This day, 29th August, is celebrated to commemorate the birthday of legendary player Major Dhyan Chand, who won 3 gold medals in hockey in Olympics and kept our country, India's head high and made us all proud.
National Sport Day is celebrated to make people aware of the importance of fitness in our daily lives. It is important that we understand that sports and games are an integral part of our life. We should do exercise, we should play sports, do exercise, cycling, yoga, juggling, etc. whatever we like it daily, and should keep us fit, healthy and fine. Friends, let us come in the fields and not play virtual games on computers. Sweat it out and feel the fresh air. Believe me, it is the real fun of life. Thanks. Have physically active days. नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नवोदय, मैं कक्षा 2वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु है। आज हम योगा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन हमारे पैरों व पिंडियों को मजबूत बनाता है, वह हमें लंबा होने में मदद करता है। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन हमारे शरीर में लचीलापन लाता है, वह कमर की समस्याएं दूर करता है। धन्यवाद। Good morning, my name is Ankita. I study in 8th class. The name of my school is Kendriya Vidyalaya ITBP Bhanu. Today I am going to do skipping. Reverse. Thank you. All of you, my name is Bhavya, class 4th, Kendriya Vidyalaya ITBP Bhanu. Good morning all of you. I am Jatin for class 8 केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु। आज हम आपको आसनों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आसन कुछ इस प्रकार है। तदासना। यह आसन हमारा विकास तेज करने में सहायक है और साथ ही साथ यह हमारे मन को भी शांत रखता है। पदास्तासना। यह आसन हमारे मानसिक विकास को बढ़ाने में सहायक है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। स्वर्गासन। यह आसन हमारे पेट को साफ रखता है, हमारा दिमाग तेज रखता है। वृक्षासन। यह आसन हमारे एड़ियों में जो दर्द को सही करता है और साथ ही साथ हमारी एड़ियों में लचीलापन लाता है। पद्मासन। यह आसन हमारे शरीर को प्रफुल्लित रखता है और हमारा मानसिक तनाव दूर करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर का तनाव दूर करता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं मिली शर्मा केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु की छात्रा आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सबके सामने खेल कूद के महत्व पर भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। खेल कूद हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यह न केवल हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं अपितु हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाते हैं। यह हमें और अधिक चुस्त बनाते हैं।
खेल हमें कुछ नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी देते हैं, जैसे एकाग्र रहना, एक साथ मिलकर कार्य करना और कठिन से कठिन परिश्रम करना। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि खेलकूद हमारे जीवन में अधिक महत्व नहीं रखते। खासकर इस मोबाइल और कंप्यूटर के समय में हमें अधिक से अधिक खेल खेलने चाहिए। कोरोना काल में भी यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारे सहायक है। हम विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, फिर वो चाहे शतरंज हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सांप सीढ़ी हो, लंगड़ी टांग हो या फिर क्रिकेट। इनमें से कुछ हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ाते हैं तो कुछ हमारी शारीरिक क्षमता। इतना ही नहीं, यह हमारे दिमाग को शांत एवं आराम देने में भी हमारे सहायक है। इसलिए कभी यह ना सोचिएगा कि खेलकूद का महत्व किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कम है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पायल यादव केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु की कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सभी को खेलों के महत्व के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। खेल व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलकूद एक खिलाड़ी को बहुत सी चीजें सिखाता है जो उसके जीवन में उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, जैसे सफलता और असफलता के साथ साझा करने की कला और सामूहिक रूप से समस्याओं से निपटना भी सिखाता है। खेल से हमारा दिमाग स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है और हमारा शरीर चुस्ती व फुर्ती से भरा रहता है। हमारे देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, ऐसे और भी बहुत खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अतः हमें भी रोज खेलने के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा मन खुश रहेगा। और अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हमारा मन पढ़ाई में और अन्य कामों में अच्छे से लगेगा। धन्यवाद। हॉकी जगत में भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी जहां एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाती चली आ रही है, वहां भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स जैसे खेल कुंभ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व हॉकी इतिहास में सुनहरी पन्ने जोड़े हैं। भारतीय हॉकी आकाश के सितारों का जब जिक्र होता है
तो जयपाल सिंह, रूप सिंह, एरिक पेनेगर, केडी सिंह बाबू, ऊधम सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, कर्नल इख्तितार दारा, विजय पीटर, लेस्ली क्लॉडियस, शंकर लक्ष्मण, आर.एस. जेंटल, पृथ्वीपाल सिंह, अजीतपाल सिंह, कर्नल बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह गर्चा, अशोक कुमार, सुरेंद्र सोढ़ी, प्रगट सिंह एवं धनराज पिल्ले का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। लेकिन कैप्टन ध्यानचंद हॉकी के इन सितारों में ध्रुव तारा बनके उभरते हैं। ध्यानचंद जी को भारतीय हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद के राजपूत घराने में हुआ। कुछ वर्षों बाद ये परिवार झांसी जा बसा और दादा ध्यानचंद ने बाकी का अधिकांश जीवन वहीं गुजारा। बचपन से ही ध्यानचंद जी को हॉकी से लगाव था। अपने छोटे भाई रूप सिंह और दूसरे साथियों के संग मोहल्ले की गलियों, घर की छतों और आसपास के ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर अपनी प्रिय खेल को खेलते रहे। मात्र 16 वर्ष की आयु में कैप्टन ध्यानचंद ने दिल्ली में एक सिपाही के तौर पर आर्मी में नौकरी शुरू की और वहां कड़ी मेहनत के साथ अपनी खेल को और निखारा। आखिर अप्रैल 1927 में वो पहली बार आर्मी की ओर से न्यूजीलैंड के दौरे पर गए और अपना खेल जादू दिखाना प्रारंभ किया। जब हिंदुस्तान की टीम गई न्यूजीलैंड खेलने के लिए तो एक लोकल टीम के साथ हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी और फर्स्ट हाफ में कोई गोल न कर सकी, जो कि दर्शकों को बड़ी हैरानी थी। वजह उसकी ये थी कि घास बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसा दादा ध्यानचंद ने अपनी किताब में गोल में लिखा है। तो बॉल को पास करना, एक दूसरे को देना बहुत मुश्किल था। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी न्यूजीलैंड में, माओरीज़ की, वो लोग भी काफ़ी संख्या में मैच देखने आए थे और उन्होंने कुछ जादू टोना सा भी कर रखा था, जो पहले ज़माने में ये बहुत रिवाज था कई मुल्कों में। तो दादा ध्यानचंद रूप सिंह को जादू टोना की तो ना कोई नहीं परवाह थी, लेकिन घास की ज़्यादा परवाह थी। और फर्स्ट हाफ के बाद दादा ध्यानचंद और रूप सिंह ने ये बात की कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक गोल भी नहीं हुआ है, घास बहुत बड़ी है, कैसे खेलना चाहिए। तो दादा ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह से कहा कि हम लोग बॉल ऊपर ऊपर खेलेंगे, बॉल को ज़मीन पे ना ही आने दें। और ऐसे ही हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने किया। 5 गोल मारा उन्होंने लोकल टीम के खिलाफ सेकेंड हाफ में और न्यूजीलैंड के लोग आश्चर्यजनक हो गए। 1928 में दादा ध्यानचंद एम्स्टर्डम में पहली ओलंपिक्स खेले और स्वर्ण पदक जीता। लॉस एंजलिस में हुई 1932 की ओलंपिक्स में अमेरिका के होम ग्राउंड पर यूएसए को 24-1 से पराजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2 मार्च 1934 को वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने, जिसने वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स में भाग लिया। अप्रैल 1935 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो भारत की टीम, जिसने कुल मिलाकर 584 गोल किए, उनमें से ध्यानचंद जी ने 201 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 185 गोल किए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में जर्मनी को फाइनल्स में करारी हार दी और हिटलर देखते रह गए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने लगभग 30 वर्ष तक भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक खेल खेला। जब फाइनल खेला हिंदुस्तान जर्मनी से हॉकी में, तो हिंदुस्तान ने शिकस्त दी जर्मनी को और हिटलर साहब जो मैच देख रहे थे वो ये बात न देख सके। और उस दिन से हिटलर के दिमाग में ये बात आई कि मेरा ऐसा मानना कि वाइट एक सुपीरियर रेस है, वो गलत है और बिल्कुल गलत है। तो वो इतने खुश हुए हिंदुस्तान की हॉकी टीम के खेल देख करके कि उन्होंने ध्यानचंद साहब और पूरी टीम को खाने पर बुलाया। उन्होंने न्योता दिया, हिंदुस्तान की टीम गई। और मैंने जब यहाँ पर ध्यानचंद साहब थे NIS में आए वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी एडोल्फ हिटलर से क्या बात हुई जब आप उनके आमने सामने थे। तो वो हंस करके बोले, उन्होंने कहा कि बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसके आँख में आँख डाल करके देख भी नहीं सकता था, इतना खौफ था उनके चेहरे पर। तो मैं बहुत हंसा और वो खुद भी हंसे। I have known Dhyanchand, Major Dhyanchand I will call, for about 45 years, and from very close quarters, but from very close nearness with him as a player, as a coach,
as a selector of national hockey teams, and then ultimately as a friend. My appraisal about Mr. Dhyan Chand is that first of all he was a very good human being, excellent human being. He was a very simple person in his lifestyle. There was no ostentation about him, nothing. He was not foppish. And then, because these qualities are normally not found in people who are recognized as heroes in a country, because of these qualities, he became more popular. Not only among the people of his own generation, but even the youngsters, even the older people who were senior to him in age. He was a very lovable man as a human being. I have never known him thinking of harming anybody, never. And he never lost temper on the ground and off the ground, never. He played against very tough European teams. He played against very tough American teams in those days, but he never lost temper and he never tried to hit anybody. Therefore, bad hockey, as he used to call playing foul is bad hockey, he always avoided and taught others and guided others to play fair hockey, because hockey should be very fair, and if one was trying to hit somebody, hockey is a weapon and it will hurt somebody, it will injure somebody, it will make somebody incapable of playing in future. This was a great merit. वर्ष 1961 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में भारतीय खेलों में नया अध्याय जोड़ने जा रहा था। इसी वर्ष इस आकर्षक स्थल पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेल अनुशासनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज का शुभारंभ हुआ। NIS पटियाला में इन कोर्सेज का उद्देश्य यह था कि हमारे कोचेज साइंटिफिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और बाद में भारतीय खिलाड़ियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जोरदार ढंग से तैयार करें। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने विदेशों से निपुण कोचेस को नियुक्त किया। हॉकी के लिए कोच किसको लगाया जाए, ये एक प्रश्न था। जब ये डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए गए तो विदेशी कोचेस की सेवाएं जो थी वो हमने ली, पर हॉकी में क्योंकि देश की सुप्रीमेसी पहले ही मानी जा चुकी थी, तो ये तय हुआ कि हॉकी के लिए एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को जो कि काफ़ी तजर्बा रखता हो और विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, उसको कोच के रूप में यहाँ इन कोर्सेज को करवाने के लिए लिया जाए। तो उस समय दादा ध्यानचंद जी से बढ़कर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको इस कार्य के लिए चुना जाए। तो दादा ध्यानचंद जी को उस समय पहले ही वर्ष में इस संस्थान में चीफ हॉकी कोच के तौर पे रखा गया और उनके साथ ओलंपियन बालकिशन सिंह जी, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं और जो कि 1980 में ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के कोच थे, उनको दादा ध्यानचंद जी के साथ अंडर स्टडी एज असिस्टेंट कोच उनको भी रखा गया। I was very lucky to be with Dada Dhyan Chand for many years as his understudy assistant coach at NIS पटियाला। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने ये दरख्तों के नीचे ये सारे जो हैं ये ग्राउंड, इनफैक्ट ये ग्राउंड हमने अपने हाथों से बनाई थी। पहले यहाँ पे एक छोटी सी ग्राउंड उधर होती थी, स्टार्ट विद 61 में तो शुरू ही हुआ था और 62 में तकरीबन हमने ये ग्राउंड अपने हाथों से बनाई थी और हमने बहुत टाइम यहाँ पे निकाला है। तो पूरा सारा दिन ही हम तो यहीं निकालते थे। तो उनके साथ रह के खैर सीखना तो है ही, बिकॉज यो हम लोग क्या बच्चों को सभी को जिसमें कुछ सीखना है तो यू नीड ए रोल मॉडल। तो दादा वाज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, एज ए कोच, एज ए पर्सन, एज ए मैन। तो सबसे पहले तो मैं दादा का जो मैं समझता हूँ कि वो
जो थे वो ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। अब इंडियन हॉकी, हम इंडियन हॉकी क्यों कहते हैं? सभी कहते हैं कि इंडियन हॉकी है, ये है, तो हम इंडियन हॉकी इसको क्यों कहते हैं? हम ब्रिटिश हॉकी क्यों नहीं कहते या जर्मन हॉकी क्यों नहीं कहते? इंडियन हॉकी ये जो थी इसमें ये स्किलफुल हॉकी है। अभी भी लोग पाकिस्तान हॉकी नहीं कहते, वही पुरानी इंडियन हॉकी सब याद है सबको। और वो है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले विच इज़ डिफरेंट दैन the European style of play. Their style is hitting and running, and our style is more based on skills, based on the mastery of skills. Actually, that's the right word I should use. तो दादा जो थे वो इंडियन हॉकी के मैं समझता हूँ कि फादर थे, क्योंकि उन्हीं से एक्चुअली जो सारी स्किल्स वो हुए, रूप सिंह हुए उनके ब्रदर, इन्हीं से ये इंडियन हॉकी की स्किल्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। और उसके पहले हॉकी खेली जाती थी लेकिन उस लेवल तक नहीं। और अपनी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है, जैसे मान लीजिए, तो ये भी उसी ज़माने में बनी थी। 1926 में हमारी आर्मी टीम पहली न्यूजीलैंड गई थी और न्यूजीलैंड की सक्सेस के बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन 1927 में बनी और 1928 में हमारी पहली ओलंपिक टीम गई थी एम्स्टरडैम और वहाँ से हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद भी गोल्ड मेडल हमने जीता। लेकिन ये जो इंडियन हॉकी जिसको हम स्किल्स कहते हैं वो ये लोगों ने डेवलप की। दादा ध्यानचंद दुनिया के सर्वोत्तम सेंटर फॉरवर्ड थे। उनके हाथ में हॉकी स्टिक जादू की छड़ी का रूप धारण करती थी। उनकी खेल शैली में कला कौशल, साहस और पूर्वाभास का अनूठा संगम था। He was always known that he had an eye at the back because he could see the whole field, and you know that I analyzed later what really it is. You know, when working with him as a coach, I analyzed that before the ball comes to you, you should know where to pass the ball. That means you should study the surroundings before the ball comes to you, otherwise it's too late. You know, you must know where the opponents are before the ball comes to you, where the opponents are, where your players are. Only then when you get the ball you can pass it. Otherwise, when you have the ball, you have no time to look where to pass the ball. So that is what he really meant by third eye. I analyzed it later and made it a theory. जिस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ता था लाहौर, तो सुना करते थे कि सर ध्यानचंद जी ओलंपिक खिलाड़ी थे और उनको जादूगर कहा जाता था। तो हम भी मान जाते थे भाई हाँ वाकई शायद जादूगर ही होंगे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हॉकी सर्कल में आए, तो कॉलेज में चले गए, तो फिर उनके दर्शन भी हुए। और खुशकिस्मती ये है कि 1946 में मैं उनके साथ बगल में रहते थे। हम, मेरे ब्रदर और वो दोनों साथ साथ उनके बंगले थे फिरोजपुर कैंट में। तो उनसे मुलाकात वहाँ पे हुई, उनकी खेल भी देखी, उनके साथ भी खेले। और लकीली वो मेरे कोच भी रहे हैं NAS पटियाले में, जबकि मैं कोर्स करने गया था कोचिंग का। तो वो मेरे कोच थे, नहायत आदमी इज़्ज़त वाले, और रिस्पेक्ट दूसरों के वो करते थे, ख़ुद भी करवाते थे। एंड वो जो मैंने देखा सिखलाई करते वक्त, उनका रिस्ट वर्क जो था, रिस्ट बहुत चौड़ी थी। और इसी तरह से उनकी कोई, जब वो स्टिक हॉकी खेलते थे तो उनकी स्टिक नहीं होती थी, वो रिस्ट से जोर लगाते थे। और उनका एक मुद्दा ये था कि गेम में उन्होंने सेंटर लाइन से लेकर 25 लाइन तक अगले की ग्राउंड में उन्होंने बॉल को कैरी नहीं करना, सिर्फ टच करके लेफ़्ट राइट या राइट आउट या लेफ़्ट आउट को फेंक देना है। और 25 लाइन के पहुँच कर फिर उनकी हॉकी में ऐसे जादू था, जैसे कि कहा जाता है, वो कंट्रोल करके खुद गोल कर देते थे। उन्होंने एक मैच में 10-10 गोल भी किए हैं। When he played in America, they thought probably in Germany also, they thought probably there was some magic in his hockey stick, and they even changed his sticks. So that didn't matter much so far Dhyanchand was concerned. Any stick was as good for him as the one with which he was playing. So he was a magic man, like Don Bradman in cricket. Dhyanchand was the same in hockey. Like Pele in football, he was the same in hockey.
इस महानतम भारतीय हॉकी खिलाड़ी को चोटी के खेल प्रशिक्षक होने का जहां गर्व प्राप्त है, वहां वो ओलंपियन अशोक कुमार के पिता भी थे। विश्व विख्यात इस हॉकी जादूगर की याद जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की धड़कन से जुड़ी है, वहां उनकी प्रतिमा को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थलों में सजाया गया है। उनकी यादों को संग्रहालयों में उच्च स्थान दिया गया है। NIS पटियाला में उनके नाम पर खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल भी बनाया गया है। यह इंस्टीट्यूट जो है, इसको दादा ध्यानचंद पे बहुत गर्व है कि वो पहले कोच इस संस्थान में रहे और इस तरीके से इस हॉस्टल का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया सन 1976 में, और 1977 में अगस्त में ये हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो गया। तब हमने फिर दादा ध्यानचंद जी को यहाँ आमंत्रित किया कि इस शुभ अवसर पर, जबकि उनके नाम से इस हॉस्टल का उद्घाटन होना है, तो वो भी इस समय यहाँ मौजूद रहें और बच्चों को आशीर्वाद दें। तब 29 अगस्त 1977 को उनके 72वें जन्मदिन पर इस हॉस्टल का उद्घाटन उनकी मौजूदगी में किया गया। यह इस संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात थी। क्यों न हो गर्व ऐसे भारत के महान सपूत पर। हॉकी वाज इन हिज ब्लड, हॉकी वाज इन हिज थॉट, हॉकी वाज इन हिज एक्शन। उनके बाद मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग के मुताबिक इतना अच्छा सेंटर फॉरवर्ड नहीं पैदा हो सका। ही वॉज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी कभी, मतलब प्रॉब्लमें होती हैं, सभी को होती हैं, बट ही नेवर शोड इट एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टू द फुल। जैसे वो कहते हैं कि हम दादा रात को खाना खाया, उसके बाद उन्होंने बिलियर्ड भी खेलना है, फिर आके सोएंगे। आई मीन दैट टाइप ऑफ, अर्ली मॉर्निंग उठे 4 बजे फिशिंग के लिए चले गए संडे को। तो ही एन्जॉयड लाइफ, ही एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड according to me he was a very great soul and a great person. हॉकी जगत की इस महान विभूति को, उनकी खेल निष्ठा को, उनकी प्रशंसनीय खेल शैली को एवं हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद द्वारा भारत के लिए रचे गौरवमयी इतिहास को पूरा भारत नमन करता है।